ઓમ ગણેશ. ચાલો સત્સંગ કાર્યમાં આપ સૌનું હું સ્વાગત કરું છું. અને આવતીકાલે શુક્રવારે મહાન સંયોગ, મહાન ઉત્તમ શ્રેષ્ઠ એક આખો યજ્ઞ છે, જે હું તમને આજે પ્રેક્ટિકલી બતાવીશ. અને એના સિવાય એનું આખું વિધાન શું છે એ તમને હું શ્રવણ કરાવીશ. અને આ વિષય, આ વિડીયો એવો છે કે આ એક પ્રયોગ એવો છે જે આપણા શાસ્ત્રોમાં લખેલો છે. અને આ પ્રયોગ કરવાથી અપાર ધનલક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય છે. કર્જ મુક્તિ દેવામાંથી મનુષ્ય મુક્ત થવા માટે આગળ વધે છે. કોઈ વ્યાપારી હોય તો વ્યાપારમાં વૃદ્ધિ થાય છે. અને ઇન શોર્ટમાં, સંક્ષિપ્તમાં કહું તો ધનલક્ષ્મી પ્રાપ્તિ કરવાના જે દ્વાર છે એ ધીમે ધીમે ખુલવા માંડશે. હવે એ પ્રયોગ શું છે? તો એ પ્રયોગ છે આવતીકાલે જે બનવાનો છે સંયોગ ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર અને શુક્રવારનો યોગ. શુક્રવાર એટલે માતા લક્ષ્મીજીનો દિવસ છે, કે લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ માટેનો જે એક ઉત્તમ શ્રેષ્ઠ દિવસ મનાય છે એ શુક્રવાર છે. અને એ જ દિવસે ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર છે. તો ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રની અંદર જે યજ્ઞ કરવાનો હોય છે, જે બહુ ટૂંકો છે, સહજ છે અને સરળ છે, સૌ કોઈ પોતાના ઘરે કરી શકે છે. અને માની લો કે તમને કદાચ કરવામાં અસમર્થતા હોય તો તમે કોઈ વિદ્વાન આપણા ગોર મહારાજનો સહારો લઈને તમે કરી શકો છો, અથવા વિદ્વાન બ્રાહ્મણ દ્વારા પણ આ યજ્ઞ પોતાના નામથી, પોતાના ગોત્ર આદિ ઉચ્ચારણ કરી સંકલ્પ સાથે આ યજ્ઞ કરાવી શકો છો. હવે આ યજ્ઞ કયો છે? તો સૌથી પહેલા એ જાણો કે આ ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર કેટલા વાગે શરૂ થશે ને કેટલા વાગે પૂર્ણ થશે. તો સૌથી પહેલા એ તમને શ્રવણ કરાવું કે 14 જૂન એટલે આવતીકાલે શુક્રવારે સવારે 5:09 ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રની શરૂઆત થશે. અને પરમ દિવસે શનિવારે સવારે 8:14 આ ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર અને શુક્રવારનો સંયોગ છે એ પૂર્ણ થઈ જશે. હવે સૂર્યાસ્ત પછી યજ્ઞ નથી કરવાનો. શુક્રવારે સાંજે સૂર્યાસ્ત પછી યજ્ઞ નથી કરવાનો. અને સૂર્યાસ્તનો સમય દરેક દેશકાળ પ્રમાણે અલગ હોય છે, તમે પંચાંગમાં કે ઓનલાઈન જોઈ શકો છો. પણ સવારે 5:09 બ્રહ્મ મુહૂર્તથી શરૂઆત થઈ સાંજે સૂર્યાસ્ત સુધીમાં ગમે તે સમયે આ યજ્ઞ કરી શકાય છે. હવે આ યજ્ઞની અંદર શું હોય છે? સફેદ તલ લેવાના, યથાશક્તિ તમે કેટલી આહુતિ આપો છો એની ઉપર આધાર છે. સફેદ તલ, સફેદ રંગના ફૂલ લેવાના, પુષ્પ લેવાના, પછી એમાં થોડું મધ મિશ્ર કરવાનું અને ગૌ માતાનું ઘી. હવે કેટલી માત્રામાં લેવાનું છે એ મહત્વનું નથી, કારણ કે તમે કેટલી આહુતિ આપવાના છો એ આહુતિની સંખ્યા પ્રમાણે આ બધું દ્રવ્ય લેવાનું. એમાં સફેદ તલ થોડા વધારે રાખવાના. અને નમઃ કમલવાસિન્યય સ્વાહા સ્વાહા મૂળ મંત્ર છે. નમઃ કમલવાસિન્યય સ્વાહા. યજ્ઞમાં આહુતિ આપીએ તો ફરીથી એકવાર આપણે સ્વાહા બોલવાનું છે. તો નમઃ કમલવાસિન્યય સ્વાહા સ્વાહા 108 વખત આ બધું દ્રવ્ય ભેગું કરીને તમે આહુતિ આપી શકો છો. અને વધુ સમય હોય તો 1008 વખત પણ તમે આહુતિ આપી શકો છો. અપાર ધનની પ્રાપ્તિ થશે. અને આ લોકોના અનુભવ અમને અમારી સાથે લોકોએ અનુભવ શેર કરેલા છે, વ્યક્ત કરેલા છે, બતાવેલા છે. અને આ યજ્ઞ કરવાથી બહુ જ લોકોને લાભ થયો છે. એ બધાના અનુભવને ફીડબેક અમારી પાસે છે. અને આ શાસ્ત્રોક્ત વસ્તુ છે. હવે સફેદ રંગના જે ફૂલ છે, જો આપણે તાજા તોડીએ તો એ થોડા ડ્રાય ના હોય, સુકાયેલા ના હોય. એટલે જો આપણે યજ્ઞમાં કરીએ તો ધુમાડો ને બધું વધારે થાય. એના માટે શું છે કે એ સફેદ ફૂલ કોઈ પણ, જેમ કે સફેદ રંગના ગુલાબ છે, એની પાંખડીઓ કરી દો. અને એ પાંખડીઓને ડ્રાય કરી દો, સૂકવી દો, તાપમાં સૂકવી દો. અથવા ચૂલા કે ગેસ ઉપર લોઢી મૂકી અને એની ઉપર રાખી 5-10 સેકન્ડ થોડું એ ફૂલની પાંખડીઓ રાખીને ડ્રાય થઈ જાય એટલે લઈ લેવાની. અને પછી મિશ્ર કરીને યજ્ઞ કરી દેવાનો. આ રીતે તમે સવારે 5:09 થી માંડી બીજા દિવસે સવારે 8:14 સુધી ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર છે. પણ શુક્રવારના સંયોગના કારણે 14 જૂને શુક્રવાર એટલે આવતીકાલે સૂર્યાસ્ત પહેલા આ યજ્ઞ તમે 108 વાર આહુતિ અથવા 1008 વાર આહુતિ આપી શકો છો. અને માં લક્ષ્મીનું આગમન તમારા ઘરે અવશ્ય થશે ને થશે એવું અનુભવ છે ને શાસ્ત્રોનું કથન છે. બીજા નંબરમાં, જ્યારે તમે આ યજ્ઞ કરો, જો ઘરની અંદર તમે કરો તો તમારા જ ઘરના મંદિરની સામે બેસીને યજ્ઞ કરી શકો છો. અથવા તમે કોઈ બીજી જગ્યાએ કરો તો આ યજ્ઞ કરો ત્યારે આપણું મોઢું પૂર્વ દિશામાં અથવા ઉત્તર દિશામાં હોવું જોઈએ અને યજ્ઞ કરવાનો. આમાં બીજું કોઈ વિશેષ વિધાન, પૂર્ણાહુતિ આદિ કંઈ કરવાની જરૂર નથી. બસ આ 108 આહુતિ વગેરે બધું આપી દેવાનું સરસ મજાનું. બીજું કાંઈ વિશેષ વિધાન નથી. ને પછી ભસ્મ તમે ચાહો તો રાખી શકો છો, નહીં તો પવિત્ર જગ્યાએ વિસર્જન આદિ તમે બધું કરી શકો છો. હવે આ યજ્ઞ કેવી રીતે કરાય એનો મેં હિન્દી મારી ચેનલ ઉપર એક વિડીયો બનાવ્યો હતો. તો એને હું સંક્ષિપ્તમાં આપણા ગુજરાતી ચેનલ ઉપર નથી બનાવ્યો, એટલા માટે હું સંક્ષિપ્તમાં એ જ વિડીયોને થોડું કટ કરી અને મૂકું છું, જેથી તમે પ્રેક્ટિકલી જાતે આ યજ્ઞ ઘરે કરી શકો. અને મેં કીધું એમ કે જો તમે જાતે કરવામાં સમર્થ ન હોય તો તમારા ગોર મહારાજને બોલાવીને અથવા કોઈ પણ વિદ્વાન બ્રાહ્મણો દ્વારા આ યજ્ઞ તમે કરી શકો. અને એવું નથી કે ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર
કાલે છે તો કાલે જ યજ્ઞ દર મહિને પણ, જેમ કે અમે પોતે બધાના માટે દર મહિને ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રનો યજ્ઞ કરીએ છીએ, તો તમે પણ દર મહિને જ્યારે પણ ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર આવે દર 27-28 દિવસે આવતું હોય છે, તો તમે પણ આ યજ્ઞ જાતે ઘરે કરી શકો છો, અથવા તો પોતાના માટે, પોતાના પરિવારના કલ્યાણ માટે, વ્યાપાર વૃદ્ધિ માટે, ધન પ્રાપ્તિ માટે, સ્થિર લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ માટે પોતાના ગોર મહારાજ અથવા તો વિદ્વાન બ્રાહ્મણ દ્વારા પણ કરાવી શકો. પણ આવતીકાલે જે સંયુક્ત છે એ શુક્રવાર યુક્ત ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર છે, એટલા માટે હું આ વિડીયો બનાવું છું કે સૌ કોઈ લાભ લઈ શકે. तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कौन कौन सी सामग्री यहाँ से पहले से ही प्रिपरेशन किया है, क्योंकि पूजा के बीच, यज्ञ के बीच खड़ा होना पर्सनली निजी रूप से मुझे पसंद नहीं है, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर एक चीज़ परफेक्ट हो बिना किसी त्रुटि के. तो यहाँ से शुरुआत करूँगा. तो आप ये देख सकते हो, हालांकि यह पूजा का अंग नहीं है क्योंकि धन त्रयोदशी है, लक्ष्मी जी के आगमन की है ये सारी तैयारी. तो ये ऐसे ही घर पे ही अन्न के द्वारा बनाया हुआ लक्ष्मी जी के आगमन के लिए, एक उनके स्वागत के लिए बनाई हुई एक चीज है. आप इसे कार्ड कह सकते हो, या लक्ष्मी जी के आगमन के लिए, या धनागमन के लिए, या अन्न आगमन के लिए बनाई हुई चीज है. तो आप कोई भी अपने हिसाब से डेकोरेशन कर सकते हो. अब यहाँ से शुरुआत करते हैं. सबसे पहले मैंने एक कलश भर के पानी लिया है. हालांकि इसमें जल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन किंतु क्यों मैंने लिया है वो आपको बताऊंगा बाद में. यहाँ पर मैंने पवित्र समिदाएं ली है, पवित्र वृक्ष की, जैसे पीपल आदि होते हैं, पीपल है, वट वृक्ष है, औदुंबर है, आम है, तो आप इस प्रकार से ले सकते हो. यहाँ पर मैंने माचिस की एक पूरी पैकेट लिया है, मैच बॉक्स लिया है अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए. ये नैपकिन है, हाथ केवल पोंछने के लिए, ताकि बीच यज्ञ में खड़ा होना ना पड़े. यहाँ पर मैंने एक छोटा सा यज्ञ कुंड लिया है, और वह यज्ञ कुंड मैंने इस ताम्र प्लेट में रखा है. और जैसे मैंने अभी आपको यह कलश दिखाया पानी भरा हुआ, तो यह जो कलश है उसमें जो पानी है मैं इसमें रखूंगा. उसका रीजन क्या है कि देश काल अनुसार विदेशों में या हमारे ही देश में जैसे शहरों में कई बार होता है कि नीचे वुडन फ्लोर होता है, कारपेट आदि होता है, या पत्थर होते हैं, तो डायरेक्ट सीधा हवन कुंड उस पर ना रखकर ऐसे अगर आप एक ताम्र प्लेट में या स्टील की बड़ी प्लेट में या यज्ञ कुंड की साइज के अनुसार प्लेट में पानी पहले रख दीजिए और उसमें हवन कुंड रख दीजिए, ताकि नीचे की जो प्लेट है वो कभी गर्म नहीं होगी पानी की वजह से, और उसके नीचे फ्लोर होगा, कारपेट होगी, तो वो जलेगी नहीं. यानी एक सेफ्टी पर्पज के लिए हमने ये रखा है, तो आप वह फॉलो कर सकते हो. अब यहाँ मुख्य रूप से जो मेन चीज है यज्ञ में, जैसे सफेद तिल है, शहद है, गाय का घी है, और सफेद फ्लावर्स लिए हैं. तो आप ये पूर्ण रूप से सफेद देख सकते हो. यहाँ मैंने एक रोज लिया है जिसकी मैं अभी पेटल्स बनाऊंगा. यहाँ पर भी मैंने एक फ्लावर्स लिया है जिसकी मैं पंखुड़ियां बनाऊंगा, और ये ड्राई फ्लावर्स है. और एक अच्छी रेसिपी है कि आप इस ताजे फूल को भी कैसे ड्राई कर सकते हो, वो भी एक दिन मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा. तो पहले यज्ञ से पहले यह सारी प्रिपरेशन कर दीजिए. और हाँ, यज्ञ को प्रज्वलित करने के लिए इस प्रकार से आपको पहले से एक बाती भी रखनी है, और फिर कैसे यज्ञ कुंड में प्रज्वलित करना है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा. लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि यज्ञ करने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए सबसे पहले जो सारी आवश्यक चीजें हैं वो पहले से ही लेके बैठिए. ऐसा कभी ना हो कि जब आग लगे तब पानी के लिए कुआं खोदने बैठो और सब लेट हो जाए, कोई दोष या त्रुटि रह जाए. तो इसीलिए सब कुछ प्रिपरेशन ऑलवेज पहले से रखिए, तो भगवान भी खुश होंगे, मन को भी संतुष्टि मिलेगी. और अगर जब भी आप पूजा पाठ यज्ञ करते हो और अगर बीच में खड़ा होना पड़ रहा है, तो कभी कभी हमारे मन को भी असंतुष्टि होती है, और उसकी वजह से कभी कभी गुस्सा आ जाता है, जैसे ये रह गया वो रह गया, फिर परिवार के सदस्यों के ऊपर चिल्लाना बोलना, ये सारी चीजें होती रहती है. तो ऐसा ना हो, इसलिए पहले से ही इस प्रकार से प्रिपरेशन रखना है. तो जैसे आपने देखा कि पहले से यज्ञ से पूर्व कैसे प्रिपरेशन किया जाता है. अब सीधा यज्ञ शुरू करना है, फिर भी एक दो स्टेप आप उसे फॉलो कीजिए. जैसे सबसे पहले आचमन करना है. ओम ह्रीं केशवाय नमः, ओम ह्रीं नारायणाय नमः, ओम ह्रीं माधवाय नमः, ओम ह्रीं गोविंदाय नमः इति हस्तं प्रक्षाल्य. इस प्रकार से आप आचमन कर लीजिए सबसे पहले. और अगर आप शिखाधारी हो, आपने शिखा रखी है, तो शिखा को भी बंधन करना है. ओम मानस्तो केतनये मान आयुखिमान गोकुमानो अश्वेखुरीरिकः मान वीरं ग्रबामिनो वधीरः विखमन्दः सदमित्वा हवामहे. मान लीजिए आप यह वैदिक मंत्र नहीं बोल सकते हो, तो सिंपल सा ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्वितः तिष्ठ देवी शिखा बंदे तेज वृद्धि कुरुष्व में, अर्थात मेरे तेज की वृद्धि कीजिएगा.
शिखा खुली रखकर कभी यज्ञ पूजा पाठ आदि नहीं किया जाता है। अगर आपने शिखा नहीं रखी है तो कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा रखने की। जैसे एक धर्म एक पंथ है, चाहे कोई भी हो, सब रखते हैं, आप समझ गए होंगे। शिखा आवश्यक है, तो शिखा अगर आपने रखी है तो शिखा बंधन कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं यज्ञ। तो जो मैंने आपको बताए थे पुष्प, तो पहले क्या करें, अगर रोज वाइट लिया है तो वाइट रोज, जैसे देखिए आप यहाँ पर मैं उसकी पंखुड़ियां कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था कि 108 पुष्प लेने हैं। तो अगर बहुत बड़ा यज्ञ कुंड है मिट्टी का तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा आप ऐसे देखिए, ये मैंने पुष्प की पंखुड़ियां कर ली। उसी प्रकार से ये दूसरा पुष्प है, उसकी भी मैंने यहाँ पर पंखुड़ियां कर ली है। और ये जो चीज है वो यज्ञ कुंड में नहीं डालनी है। वैसे ही ये जो पुष्प है उसकी भी पंखुड़ियां कर ली है। और एक अच्छी चीज कि ऐसे देखिए आप, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स प्राप्त हुए हैं। तो अगर ऐसे है तो 108 पुष्प भी आप इसकी आहुति दे सकते हैं। देखिए बहुत छोटे छोटे, बहुत सुंदर है, तो आप इसकी भी आहुति इस प्रकार से दे सकते हैं। अन्यथा इस प्रकार से पंखुड़ियां कर दीजिए। और ये ड्राई फ्लावर्स जो पेटल्स है वो किए थे, तो यहाँ पर ये सारी चीज मैंने मिक्स कर दी है, खास ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है, इसी पुष्प की पंखुड़ियों में ये जो सफेद तिल है वो भी आप मिश्र कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये मिश्र कर दिया। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने शहद लिया है, हनी लिया है, मधु लिया है, तो वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत इसमें आप चाहिए तो मिक्स कर सकते हो। बड़ा यज्ञ कुंड है, हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि कुछ चीज बच जाती है, चिंता मत कीजिए, या फिर आप उतना लीजिए जितना हवन कुंड में जरूरी होता है, या जितना आप पूरे का पूरा उसमें आहुति दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये लेकर मिश्रित कर दिया है मधु। और उसी प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने गाय माता का घी लिया है, वो भी यहाँ पर मैं मिक्स कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये सारी चीजें मैंने मिश्र कर दी। और थोड़ा घी एक्स्ट्रा भी आपको साथ में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि हवन के दौरान क्योंकि अगर फ्लावर्स गीले हैं, पानी वाले हैं, या उसमें थोड़ा सा कोई भी प्रकार का दिक्कत है, तो फ्लावर्स की वजह से हो सकता है यज्ञ बूझ सकता है। तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए थोड़ा सा घी आपको एक कटोरी में साथ में ही रखना है, ताकि आप उसमें आहुति दे पाओ। तो इस प्रकार से आप सब कुछ पहले से रेडी कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने सभी सामग्री को मिक्स करके आहुति देने के लिए रेडी कर दी है। आप दूसरी तरह से भी यज्ञ कर सकते हो, जैसे आपके परिवार के सदस्य है, जैसे 4 सदस्य है तो एक घी ले ले, एक पुष्प की पंखुड़ियां ले ले, एक सदस्य तिल ले ले, एक थोड़ा सा शहद ले ले, और इस प्रकार से आप अष्टोत्तर शत अर्थात 108 बार आहुति सभी लोग दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई एक बंदा ही, कोई एक व्यक्ति ही अगर आहुति दे रहा है, तो वो तो संभव नहीं है कि एक ही साथ आप 4 सामग्री अलग अलग आहुति दे सकेंगे। तो इसीलिए ऐसे आप उसको मिश्रित करके फिर आहुति दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो समीध ली है, तो आप छोटे से हवन कुंड की साइज के अनुसार आप जो भी करें उस प्रकार से फॉलो कीजिए। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी रख दी है समीध। उसके ऊपर अब मैं ये जो बात है वो घी वाली करके यहाँ पर रखूंगा। उसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी मिश्रित करूंगा ताकि वो प्रज्वलित हो सके। वैसे अगर आप कोई नॉर्मल दूसरा यज्ञ करते हो, नवचंडी है, लघु रुद्र यज्ञ है, घर में भी छोटा यज्ञ है, कोई भी यज्ञ, तो डायरेक्ट ऐसे अग्नि इसमें ही प्रज्वलित नहीं होती है जब तक काव्याद अंश नाम की अग्नि का जो आहुति का भाग होता है नैऋत्य कोण में, जब तक वह राक्षस को नहीं दे तब तक सीधा ही नहीं रख सकते। लेकिन इस यज्ञ में कोई ऐसे नियमों का प्रावधान नहीं है, इसलिए हमने सीधा ही यहाँ पर इस प्रकार से प्रिपरेशन किया है। अब जाके आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। ओम श्राम श्रीम श्रीम रत्नेश्वर्ये नमः, ज्वालामालिन्ये नमः, हुम फट इतिम अग्निं प्रज्वाल्य। इस प्रकार से आप अग्नि को प्रज्वलित कर दीजिए। और जैसे जो भी छोटी सी समीध आदि है, जिसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में लकड़ी कहते हैं, हालांकि वह शब्द थोड़ा उचित नहीं है पवित्र भाषा में अगर हम देखें, फिर भी सबको समझ आए इसलिए मैंने यहाँ पर लकड़ी शब्द का प्रयोग किया है।
तो बहुत अच्छी तरीके से पहले से ही आप अग्नि को अच्छी तरह से प्रज्वलित कीजिए, ताकि आप जो आहुति उसमें दे रहे हो या देने वाले हो उसकी वजह से अग्नि नारायण कहीं ना कहीं यहाँ से चले ना जाए। आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि अग्नि बहुत अच्छी तरीके से प्रज्वलित हो, क्योंकि जब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है तब तक आप आहुति नहीं दे सकते हो। क्योंकि जहाँ पर अग्नि की ज्योत होती है हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में, वो अग्नि का मुख कहलाता है। और आहुति सदैव मुख में ही दी जाती है। जिस तरह से हम अन्न मुख में ग्रहण करते हैं और मुख के माध्यम से हमारे शरीर की पुष्टि होती है, उसी प्रकार से अग्नि नारायण में जो ज्योत है वह अग्नि का मुख है, और उस मुख में दी जाने वाली जो भी आहुति है उसी के माध्यम से हमारा कल्याण होता है और सभी देवी देवता वह आहुति ग्रहण करते हैं। और कभी कभार ये भी होता है कि मान लीजिए कि शायद संभव ना हो या किसी कारणवश या आहुति में या अग्नि प्रज्वलन में तकलीफ हो रही है, तो आप कर्पूर का भी प्रयोग कर सकते हो। आप कर्पूर भी यहाँ पर डाल सकते हो, ताकि कर्पूर की वजह से क्या होगा कि जो अग्नि प्रज्वलन है वो जल्दी से शीघ्र ही हो जाएगी और बुझने की भी कोई संदेह नहीं रहेगा और ना ही मन में किसी भी प्रकार का डाउट या शंका रहेगी। और जब ये प्रज्वलित हो जाता है अग्नि नारायण, उसके बाद आप सीधे ही आहुति दे सकते हैं। लेकिन फिर से यही कहूंगा कि जितने अग्नि नारायण अच्छे तरीके से प्रज्वलित होंगे उतनी आहुति आप अच्छी तरह से दे पाएंगे। अगर छोटे, जैसे इस यज्ञ को आप देख रहे हो, ये छोटा हवन कुंड है, छोटा यज्ञ कुंड है, तो फिर आहुति उसी प्रकार से देनी है और उसकी प्रज्वलन जो है, अग्नि नारायण की हाजिरी जो है उसी प्रकार से इस हवन कुंड में होगी। तो अब हम शुरू करते हैं यह यज्ञ। आप देख सकते हो इस प्रकार से यह यज्ञ कुंड भी यहाँ पर आ गए हैं, अग्नि नारायण भगवान भी यहाँ पर आ गए हैं। और सिर्फ आप अपने मन की संतुष्टि के लिए चाहो तो आप गणपति भगवान का स्मरण करके, या जैसे आप मान लीजिए सर्वप्रथम गणेश आहुति ही, तो वैसे मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, यह कंपलसरी नहीं है। मैं 2 बार कहता हूं, यह कंपलसरी आहुति देना नहीं है। लेकिन फिर भी आप चाहो तो जैसे ओम गं गणपतये नमः स्वाहा, बस आप ये आहुति गणेश जी की दे सकते हैं। और फिर जैसे नमः कमलवासिन्ये स्वाहा 108 बार आपको आहुति देनी है। अब एक बात खास आप सुनिए, जब भी आप आहुति देते हो तो ऐसे इस मुद्रा में, जिसे मृगी मुद्रा कहा जाता है, मृगी या पहली उंगली जब आप ज्वाइन करोगे तो हो जाएगी हंसी। मृगी या हंसी मुद्रा में ही यज्ञ की आहुति दी जाती है। जब किसी की मृत्यु के पीछे यज्ञ किया जाए तब सुकरी मुद्रा, 5 उंगलियों को इकट्ठा करके आहुति दी जाती है। खास ध्यान रखिएगा, मृगी मुद्रा, हंसी मुद्रा, सुकरी मुद्रा। सुकरी मुद्रा में कभी यज्ञ मत कीजिए, इससे अरिष्ट होने की संभावना रहती है। हालांकि वह मत रखिएगा मेरी कोई भी शब्द या भाषा का, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है वो कह रहा हूं। ऑलवेज याद रखिए, मृगी मुद्रा में ही यज्ञ देना है, आहुति देनी है। किस प्रकार से, तो वो भी आप देखिए। तो आप देख सकते हैं, जैसे देखिए सिर्फ इतनी ही आहुति देनी है और इस प्रकार से यज्ञ करना है, जैसे नमः कमलवासिन्यै स्वाहा। बस इसी प्रकार से आपको आहुति देनी है 108 बार। नमः कमलवासिन्यै स्वाहा, 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 नमः कमलवासिन्यै स्वाहा।
नमः कमलवासिन्यै स्वाहा, 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 नमः कमलवासिन्यै स्वाहा। नमः कमलवासिन्यै स्वाहा, 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 नमः कमलवासिन्यै स्वाहा। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से 108 बार आहुति देनी है। किंतु आपको बता दूं कि वीडियो में शायद आप अगर गिनोगे तो वो आपको अष्टोत्तर शत या 108 नहीं लगेंगी, लेकिन 108 बार ही आहुति दी है। किंतु वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए तो आपने देखा कि इस प्रकार से पूरा आप यज्ञ कर सकते हैं। तो આજનો વિષય અને વિડીયો હતો જે મેં તમારી આગળ પ્રસ્તુત કર્યો। જો તમે આ યજ્ઞ કે કંઈ પણ પોતાના ઘરે કરવાના હોય તો મારા વોટ્સઅપ નંબર ઉપર તમે ફોટો વિડીયો શેર કરી શકો છો, જેથી કરીને એ અમે બધે સોશિયલ મીડિયા ઉપર શેર કરીએ અને લોકોને એક પ્રેરણા મળે કે આવા સારા સારા યુગમાં સારા સત્કર્મ કરવાથી શુભ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે ને થાય છે। અને આ યજ્ઞ કર્યા પછી થોડા સમય પછી તમારા જીવનમાં શું પરિવર્તન થાય છે એ પણ તમે અનુભવના માધ્યમથી અમારી સાથે શેર કરી શકો છો। ખૂબ જ જલ્દી મળીશું નવા વિષયને વિડીયો સાથે। તમે જોતા રહો ચાલો સત્સંગ કરીએ મારી સાથે। ઓમ ગણેશ, હર હર મહાદેવ, જય સિયારામ।